Morning students, how are you all? I hope all of you are fine. Okay, now we are going to start your next part of your practice book, subject English class 7, my turn 4. Okay, in this my turn 4, what they have given us, let us see first. Some of the sentences given below have been identified incorrectly. Correct the ones that are incorrect. What they have given, some of the sentences means they have given the sentences here, the sentences are correct, but given below have been identified incorrectly means उनको पहचाना, जो पहचान होती है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, you can see here in the bracket they have written compound, simple, compound, clause. Okay, these they have identified incorrectly. This they have identified incorrectly. So what we have to do, we have to recognize whether they are a simple sentence, compound sentence, or whether it is a clause or a phrase. Okay, so the first question is, the ball rolled down the hill towards him. The ball rolled down. So the whole sentence is correct, but the main thing is that it is not a compound sentence. I have already explained you yesterday in the previous video. It is a simple sentence. So what we will write here, we will correct the ones that are incorrect. So whatever is wrong, we will only correct that. So this is a simple sentence, this is wrong, so it is a simple. ओके, इनको जो आइडेंटिफाइड यानी पहचाना गया है लेकिन इन्हें गलत पहचान, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. ओके, इन दिस वे यू हैव टू करेक्ट इट. नेक्स्ट, यू शुड गेट गोइंग और यू विल गेट लेट. यू शुड गेट गोइंग और यू विल गेट लेट. यहाँ पे और का यूज किया गया, मतलब एक कंजक्शन यूज किया गया. तो मैंने कल क्या समझाया था आपको, इफ द कंजक्शन इज यूज देन इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. सो वी विल राइट हियर कंपाउंड. Got it students? In this way you have to do. जैसे कि हम यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखेंगे, द बॉल रोल्ड डाउन द हिल. सॉरी, देयर वाज अ नो स्पेस, जगह यहाँ पे थी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसको मैं सही कर देती हूँ. टूवर्ड्स हिम, फुल स्टॉप. नाउ आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट सिंपल. इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. गॉट इट? इस तरीके से ही आपको ये सेकंड सेंटेंस करना है. मैं केवल आपको जो गलत है वो सही करवा रही हूँ. नेक्स्ट इज, यू मस्ट एक्सरसाइज और यू विल गेट फैट. सो दिस इज अ compound sentence, so this is right. Next is, the little flowers grew towards the sun. The little flowers grew towards the sun. This is not a clause, so this is a phrase. So in the bracket we will write phrase. I hope you are getting understood what you have to do. You have to rewrite the whole sentence again, and then in the bracket we have to correct it. Got it? Next is question number E. I am sitting outside and I am watching a beautiful sunset. I am sitting outside and I am watching a beautiful sunset. This is also a compound sentence, so I will write in the bracket compound. Okay, next sentence is, in Greek mythology Athena is the goddess of wisdom. Here they have written phrase, it is correct, so I am writing again here phrase. ये सही है तो मैंने टिक का निशान लगा दिया इसके सामने. ओके, आई लाइक कॉफ़ी बट माई फ्रेंड प्रिफर्स टी. मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मेरे मित्र ने मुझे क्या दी, उसने मुझे प्रिफर किया, यानी मुझे टी के लिए कहा, चाय के लिए कहा. सो दे हैव बट हैज़ बीन यूज्ड हियर, दे हैव यूज्ड कंजक्शन. सो इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. इन द ब्रैकेट rewrite the sentence again, and then in the bracket write down compound sentence. Got it students? I hope you have understood. Next is, she poured some milk into her coffee. Simple sentence. Yes, this is right, this is a simple sentence. So in the bracket we will write simple. Okay students, I hope you have understood. Yes students, now see my turn 5, writer's workshop. Using the listing and ordering technique, write a character sketch on a character from your favorite book. आपको क्या करना है, you have to do this exercise by yourself. आपको my turn 5 खुद करना है.
इसमें आपको क्या करना है, आपकी कोई भी फेवरेट सी बुक लेनी है, उस फेवरेट बुक में आपको कोई ऐसा कैरेक्टर लेना है या कुछ ऐसा कुछ लेके उसके बारे में क्या करना है, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको एक फेवरेट बुक लेनी है, फेवरेट जो भी बुक है, फिर उसकी बुक में एक कोई स्टोरी लोगे, स्टोरी लेके उसमें आपको क्या करना है, उस कैरेक्टर के बारे में आपको अच्छे से इसमें लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई टर्न 6 देखने से पहले हमें ये पैसेज रीड करना होगा। यू कैन सी हियर दे हैव गिवन द पैराग्राफ हियर, दिस इज अ पैसेज, वी हैव टू रीड द पैसेज फर्स्ट, देन एंड ओनली वी कैन सॉल्व माई टर्न 6 and my turn 7. So let us read this. Okay, do you read the weather forecast in the newspaper? This is about the weather forecast. हम लोग लगभग वेदर यानी मौसम के बारे में पढ़ते रहते हैं कि जैसे कि आज कितना डिग्री तापमान है, आज बारिश होगी नहीं होगी, सब कुछ उसमें आता है। सो इन द सेम वे now the weather forecast in the newspaper tell us what the temperature and air conditions are likely to be. फॉरकास्ट जो होता है न्यूज़पेपर में, हमें क्या बताता है, तापमान के बारे में बताता है, एयर कंडीशन जो वायु की जो स्थिति होता है, ऐसी चीज़ों के बारे में हमें न्यूज़पेपर बताता है। The purpose of weather forecast is to provide as accurate as possible prediction of what the weather will be like in the near future. ये वेदर फोरकास्ट बताने का एक ही पर्पस होता है, एक ही उद्देश्य है इनका, ताकि वो क्या कर सके, मतलब ये प्रेडिक्शन यानी जितना हो सके, जैसे कि अगर जैसे आंधी तूफान आने वाली है पहले से ही हमें पता लग जाता है, तो मतलब एक अंदेशा लगाया जाता है वहाँ पे कि ये चीज़ होने वाली है। हो सकता है वो ना हो, फ्यूचर में वो चीज़ ना हो, लेकिन एक मतलब पहले सूचना का पता लगा लेना या उस चीज़ का समझ में आना, तो क्या होता है, हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट टू मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ डे टू डे लाइफ इंक्लूडिंग एविएशन, फिशिंग इंडस्ट्री, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग, टूरिज्म, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि डे टू डे लाइफ हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसके लिए, फिशिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड होता है जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी होता है, जिन व्हीकल से होता है उनके लिए, फार्मिंग के लिए, टूरिज्म के लिए, सभी चीज़ों के लिए वेदर फोरकास्ट बहुत उपयोगी होता है। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वेदर फ्रॉम सनी टू स्टॉर्मी एंड वार्म टू कूल। इट कैन बी रेनी और क्लाउडी और विंडी। ये बारिश में भी मतलब मौसम चाहे वो बारिश का भी हो सकता है, बादल भी छाए हुए हो सकते हैं, या फिर वायु जो चलती है वैसा भी हो सकता है। वेदर कंडीशंस विल बी सीवियर लाइक स्नो, अ स्टॉर्म और ए हरिकेन। गेटिंग इंफॉर्मेशन अहेड ऑफ टाइम कैन हेल्प अस प्रिपेयर टू स्टे सेफ। जैसे कि आंधी तूफान आ जाते हैं, हिम गिरने लग जाती है, इनकी सूचनाएं जब हमें समय से पहले मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर models, observations and the knowledge of trends and patterns. By using these methods, reasonable accurate forecasts can be made up to 7 days in the advance. ये जो methods का यूज़ करके, जैसे कि computers का, observations का, इनका यूज़ करके, trends का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, लगभग 7 दिन की सूचना हम पहले ही ले सकते हैं। Weather symbols are used on weather maps for the conditions at weather observing stations. जैसे कि वेदर सिंबल्स यानी वेदर्स के कुछ मौसम के कुछ चिन्ह होते हैं, इनका उपयोग करते हैं वेदर के मैप्स में, ओके, ताकि वो स्थिति का पता लगा सके कि उस स्टेशन पे क्या स्थिति है उस जगह की। ए मेट्रोलॉजिस्ट इज अ पर्सन whose job is to forecast the weather. मेट्रोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका एक कार्य होता है ताकि वो वेदर का पता लगा सके कि कौन सी जगह पे क्या होने वाला है, तो वो फोरकास्ट करता है। There are many tools available now that help the meteorologist to do his or her job. बहुत सारे ऐसे उपकरणों आज हमारे सामने आ रहे हैं जिससे मेट्रोलॉजिस्ट की बहुत मदद हो जाती है। They use these tools to measure atmospheric conditions that occurred in the past and present, and they apply this information to make educated guesses about the future weather. A common tool for getting an accurate measurement of temperature is a thermometer. When the weather is rainy, a meteorologist can use a rain gauge. अगर तापमान को नापा जाता है तो थर्मोमीटर की मदद से, और वेदर अगर बारिश का मौसम हो तो मेट्रोलॉजिस्ट क्या यूज़ करेगा, रेन गेज यूज़ करेगा, एंड हाउ मच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग, ओके। A wind vane can provide this information. Anemometers gauge wind speeds and barometers provide information on air source. Meteorologists know what is coming. इसकी वजह से मेट्रोलॉजिस्ट को पहले ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, कैसा मौसम होगा, क्या होने वाला है। अब हमें क्या करना है, इसी पैराग्राफ पे निर्भर हमें माई टर्न 6 को सॉल्व करना है।
नाउ लेट्स डू माई टर्न 6. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस. हमें यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए. ये फ्रेजेस हमें वेदर फॉरकास्ट का जो अभी हमने पैराग्राफ रीड किया, पैसेज रीड किया था, उससे रिलेटेड है. तो हमें क्या करना है, इसका क्या मतलब होता है ये पूछा जा रहा है. सो फर्स्ट है इन द नियर फ्यूचर. क्या दिया गया है, इन द नियर फ्यूचर. तो इस इन द नियर फ्यूचर का क्या मतलब हो सकता है, और भी अर्थ निकलते हैं इसके. तो हम पहले देख लेते हैं. इन द नियर फ्यूचर का मतलब होता है वेरी सून, विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ शॉर्ट टाइम. ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, इनका क्या मतलब हमें समझ में आया है, हमें वो लिखना है. अहेड ऑफ टाइम, इन एडवांस. अहेड ऑफ टाइम मीन्स समय से पहले. सो इन एडवांस, एडवांस में कर लेना. या फिर अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, यानी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, यानी उस चीज़ को होने की संभावना से पहले कर लेना. अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट इज प्रिपेयर टू स्टे सेफ, यानी अपने आप को तैयार कर लेना ताकि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे. सो टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, टू बी कॉशियस, टू बी कॉशियस, या फिर केयरफुल भी लिख सकते हैं. और केयरफुल, कॉशियस की जगह हम केयरफुल भी लिख सकते हैं. या ओके. द न्यूमेरिकल डाटा. न्यूमेरिकल डाटा इज दैट डाटा दैट इज मेजरेबल. न्यूमेरिकल डाटा is data is data is data that is measurable, that is measurable, such as टाइम, हाइट. यहाँ पे लिख रही हूँ टाइम, हाइट, वेट, अमाउंट, एक्सेट्रा. ओके, ये क्वेश्चन डी का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन ई का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग हियर टू क्रिएट एजुकेटेड गेसेस. एन एजुकेटेड गेस इज अ गेस. एन educated guess is a guess which is based on a certain amount of knowledge, certain amount of knowledge, certain amount of knowledge, and is therefore likely to be correct. Okay, in these way you have to fill. Now take the screenshot of the students. Friends, now let's see my turn 7. अब हम my turn 7 देखेंगे. Find out some of the weather symbols and draw at least 4 of them. हमें यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, तो अब हमें क्या करना है, 4 वेदर सिंबल्स लेने हैं और उन 4 वेदर सिंबल्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है. यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो हम केवल 4 ही करेंगे. सो हम 4 वेदर सिंबल्स लेते हैं. पहला हम वेदर सिंबल ले लेंगे. Friends, now you can see here I have given you the weather symbols, so watch them, and then what you have to do, one by one, see here clear and sunny,
क्या करना है, ऐसे 4 सिम्बल्स बनाने। अगर आप कोई और सिम्बल्स बनाना चाहते हो यू कैन मेक द। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and you have to do these things in your textbook. If you are not having the textbook, as what you have to do the same work in your fair notebook. Okay, have a nice day.